वेलकम टू द हाइलाइट्स ऑफ डे 2। ये मैच है केपी और सेंट्रल पंजाब का, और पहले दिन जो हालात रहे वो कदरे सेंट्रल पंजाब के हक में थे, जिनने 5 विकेट पर 267 रन बनाए। साद नसीम ने 81 रन की बड़ी शानदार इनिंग्स खेली, वो अपनी सेंचुरी की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं, और मोहम्मद साद ने 78 रन बनाए। उस्मान सलाहुद्दीन ने भी निस्फ सेंचुरी स्कोर की। जहाँ तक बॉलिंग का ताल्लुक है, एक विकेट हासिल की इरफान उल्लाह, सामीन गुल, अरशद और साजिद ने, और दीगर जो 3 बॉलर्स आजमाए गए वो विकेट से महरूम रहे। तो अब पहले सेशन का एक्शन शुरू हुआ चाहता है। कमेंट्री बॉक्स में आपको लिए चलते हैं सिकंदर बख्त और अली यूनुस की जानिब। फर्स्ट डिलीवरी ऑफ डे 2 with a few partnerships there. Straightaway runs here in the early part of the day because the ball is still quite new, so it will travel quick. To me, the highlight of this 267 or 271 now is Saad Nasim's score. It's not about the 85, it's about the balls he's faced. He's been scoring just above 60-65 strike rate. In fact, he started off with an 85 strike rate. He didn't let his team feel that they've lost quick wickets, because losing Usman Salahuddin and then Saad with that 100 partnership could have put them back into reverse gear. And more runs here available. Two more added to the total. driven beautifully. That will run away for 4. Yes, it does. So Ali Shan now into the groove. He's getting some runs also. Had to be driven. It was that full. And nicely done, because not much protection. In fact, nothing in front of the square on the offside. Yeah, it's going to be put away all day long. Similar shot, similar result. There is no protection there at the deep. Just timed it between the 2 fielders. This is a very good start by this young man, Ali Shan. A shot of 1. Where did that go? Oh, that guy went right over the wicketkeeper's head for 4. So that was lucky for the batsman and unlucky for Samin. A swifty partnership between the two with that boundary of 81 deliveries, scored 51. And an end of the over as well. अच्छा शॉट, रिस्की था, लेकिन 4 रन्स मिलेंगे यहाँ पर साद नसीम को। यहाँ 300 रन्स भी मुकम्मल हो गए। सेंट्रल पंजाब के गेंद हवा में रही थी, लेकिन गली और स्लिप्स के दरमियान वो जो गैप था उसी को एक्सप्लॉइट किया। हम समझ सकते हैं कि इनकी जो यहाँ पर 4 रन्स के लिए खेल दिया, सामने हिट लगाकर अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर ली। 7वीं फर्स्ट क्लास सेंचुरी है साद नसीम की। शॉट खेलने के बाद वो सईदा रेज हो गए, बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। कल जब खेलने के लिए आए थे तो टीम मुश्किल में थी, इसलिए ये दादो तहसीन के हकदार हैं। बहुत ही खूबसूरत बैटिंग की साद नसीम ने। एक ऐसे मरहले पर आए थे जब इस सेंचुरी की अशद ज़रूरत थी। अच्छा शॉट यहाँ पर गैप में। 4 रन्स मिलेंगे साद नसीम और सेंट्रल पंजाब को। यहाँ पूरी तरह इस बार कंट्रोल में नज़र आए, हौसले भी बुलंद हैं। सेंचुरी हो चुकी है, इसलिए टेक ऑन कर रहे हैं। स्क्वायर के सामने खेलने में कामयाब हुए। और इस मर्तबा बड़ा ही सॉफ्ट डिसमिसल। अली शान गाइड करना चाहते थे, लेकिन कैच दे बैठे। यहाँ गली पोजीशन पर मौजूद थे ज़ुहैब खान, उनने कोई गलती नहीं की। बहुत
देर के बाद इस पार्टनरशिप का इख्तिताम हुआ जिसमें 85 रन बने। 43 रन बनाए अली ने 320 पर 6। Hassan Ali, who's been in good form with the bat as well. He's taken to captaincy really well in that manner with the ball and with the bat, and he'll play some shots. This is the catch, just catching practice to slip current, the gully position. But overall, their running between the wickets was quite good. Off the mark, Hassan Ali is averaging 22 this tournament. He got a quick 50 as well. Well, down the ground, intensity definitely increased. Gave himself a bit of room and he smashed it out of the park. We know that there's not much for the spinners. Sajid trying to follow the batter, but he gave himself a lot of room, and Saad can see the ball like a football now because the way he's dispatching these deliveries out of the boundary. Very severe again, spin this time goes leg side. And another maximum. Full flourish of the bat, good follow through, slog sweep over mid wicket. Edge nicked. Didn't need the fly slip, needed the keeper only. Irfan gets rid of the dangerous Hassan. Hassan Ali played it away from his body in simple regulatory catch by the keeper. Irfan getting the breakthrough. Southern Punjab, another wicket down. Hassan Ali gone for 2. 3, 3, 4 for 7. Bilal Iqbal walks in and he's got a couple of gullies to contend with. Doesn't really matter where you set the field because that's not landed inside the ground. Uses his feet to perfection with a very still head and for maximum straight down the ground. बहुत ही अच्छा स्पेल किया है ऑफ स्टंप के बाहर, ऑफ स्टंप की लाइन पर शॉट ऑफ लेंथ बॉलिंग करते रहे हैं इरफान। 350 रन मुकम्मल हुए यहाँ पर सेंट्रल पंजाब के 7 विकेट के नुकसान पर। इशारा है कि उन्होंने वापस भेज दिया अगले बैट्समैन को और बुला रहे हैं हसन अली, और बुला लिया है तो डिक्लेयर कर दिया हसन अली ने। 351 फॉर 7 स्कोर है सेंट्रल पंजाब का, जहां हसन अली ने डिक्लेरेशन का फैसला कर दिया। जी हाँ, सेंट्रल पंजाब की टीम ने 351 रन बनाए और 7 विकेट पर अपनी पहली इनिंग्स ख़त्म करने का ऐलान किया। साद नसीम ने अपनी 7वीं फर्स्ट क्लास सेंचुरी बनाई। 136 रन पर वो नॉट आउट रहे और 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इरफान उल्लाह शाह ने 53 रन देकर और एक विकेट हासिल की। सामीन गुल, अरशद और ऑफ स्पिनर साजिद खान ने। तो अब केपी की बैटिंग शुरू हो जाती है। आपको लिए चलते हैं उनके ओपनर्स की जाने। इंपॉर्टेंट हो गई ये बैट्समैन फ़खर जमान, ये ज़्यादा देर विकेट पे अगर रुके थोड़े टाइम में ज़्यादा रन्स बना सकते हैं और एक मोमेंटम दे सकते हैं केपी को। इसरारुल्लाह उनके साथ होते हैं कि ऑपोजिशन को मौका ना दिया जाए सांस लेने। वकास मकसूद गेंद करने की बिल्कुल तैयारी में है। इस वक्त पवेलियन एंड से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। बहुत विकेटें ली हैं, 34 खिलाड़ियों को आउट किया है इस सीजन में इन्होंने। बहुत ज़्यादा तजुर्बा है। नई गेंद ऐसा तरीके से करते हैं, पुरानी गेंद को रिवर्स करते हैं। चौथा मैच है फ़खर का ये केपी के लिए। अभी तक 150 किया है उन्होंने सिर्फ नेशनल स्टेडियम में। पहले गेंद स्लिप हुआ गालिबन हाथ से। अब टेंशन तो इनकी फुलर बॉल कराने की थी बिल्कुल,
डाउन द लेग साइड जा रही थी गेंद खासी बाहर. ये जो बॉडी लाइन अटैक है ये इसीलिए है. फील्डर लेग गली में थे, दूसरे लेग स्लिप में. तो इसी के साथ दूसरे दिन का खेल और लंच का टाइम हुआ जाता है. यानी हमने 4 सेशन इस मैच में अभी तक देख लिए हैं और इस सेशन में 2 विकेट्स गिरे. ये सूरत है इस वक्त दूसरे दिन खाने के वक्फे पर, जहां केपी ने अपनी पहली इनिंग्स में 3 रन बनाए हैं किसी विकेट के नुकसान के बगैर. फ़खर और इसरार विकेट पर मौजूद हैं और 2-2 ओवर्स किए वकास मकसूद और हसन अली ने और 1-1 रन उन्होंने कंसीड किया. अब आपको लिए चलते हैं खाने के वक्फे के बाद के खेल की तरफ. Couple of runs to the leg side. Waqas will try and swing the ball away from the left-hander. Started off a bit too straight. Yeah, not the right lane, a full toss in fact, which is whipped away to the leg side. So post-lunch, 8 runs off the over. It's 11 without loss. Israrullah making no mistake, making sure dispatches the full toss. Driven down the ground confidently, over pitching, and Israrullah doesn't need a second invitation. Goes full and flashed away through the offside. Well, it's gone aerial past gully. The slip had just come out to cover, so maybe even if it was there, it still would go to the fence, but maybe half an opportunity. Through the offside again. This time not timed as immaculately, but definitely a chance to come back for 3. That has been the difference between the batting of Central Punjab and KP. KP making sure that they are on the attack all the time, looking for runs, good aggressive running here also, playing in the gap. Already 7 runs from the over. Well, this time it is straight down the ground. Won't reach the fence. Another couple of runs. It is timed beautifully. Almost looked as if it would go straight to the fence. Waqas Maqsood, well, he straight away clutched his shin after bowling that ball. That doesn't look good because he looks in extreme pain. Now you were worrying about the shot down the ground, and oh, he's twisted his ankle really badly. It looks awful on that replay, and straight away he goes down. One bowler at least for this innings. अच्छा शॉट ऑफ द स्टैंडिंग ऑफ द बैक फुट और 4 रन हासिल हो जाएंगे बड़े आसानी से. आउटफील्ड काफ़ी तेज़ हो गई है और 50 मुकम्मल हो गए इस चौके के साथ केपी के. ये देखिए एक बार फिर बहुत शानदार ड्राइव और मुश्किलात बॉलर्स के साथ अब फील्डर्स में भी बढ़ती हुई, बीच में से गोल करवा दिया. जहाँ जोरदार शॉट था, फील्डर का हाथ लगने के बावजूद गेंद जो है वो बाउंड्री लाइन पार कर गई. Fakhar Zaman down the ground and hits mid-on. Against the run of play, Fakhar Zaman just hit it straight to mid-on. Huge wicket for Qasim Akram. .42 this time. It's 79 for 1, Khyber Pakhtunkhwa. And Kamran Ghulam, the centurion from round 8, walks into the middle. Israrullah this time almost holds out to mid-on. This is the opportunity that the KP batsman will give you. And this probably was an opportunity to take a catch. The
complaint here is that he didn't see the ball. He didn't attack the ball at all. This time he's seen it and he's hit it straight to mid-wicket. Another wicket. Couple of wickets now being gifted away. Israrullah trying to go over mid-wicket, gives it straight to the man. He had already played one ball that was airborne, and this time he went for the sweep across. Was not in control, straight to the man. And Qasim Akram is delighted. 2 wickets for him. 86 for 2 now as Israrullah departs for 40. Adil Amin walks out into the middle to join Kamran Ghulam. Kamran bowling change, right? और एक खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव आदिल की तरफ से कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल. जहां अगेंस्ट द टर्न खेला, बड़ी खूबसूरती के साथ गेंद की पिच पर आए. वो कैप्टन को बड़ा देखना पड़ता है उसको. और एक खूबसूरत पेडल स्वीप. अब पहले ग्राउंड किस नीचे बिल्कुल सामने शॉट मारा, अब कीपर के पीछे पेडल स्वीप किया 4 रन्स के लिए. 31 ओवर्स और 100 रन्स मुकम्मल हुए केपी की इनिंग्स के. इस गेंद को विद बाउंस खेल दिया ओवर और ये सेशन इख्तिताम को पहुंचा. केपी ने 111 रन बनाए हैं 2 विकेट के नुकसान पर. अच्छी क्रिकेट देखने में आई इस सेशन में. आदिल अमीन खासे मुतमईन होंगे अपने अब तक के खेल से. चाय के वक्फे पर ये हालात हैं. 111 रन बनाए हैं केपी ने अपनी पहली इनिंग्स में 2 विकेट के नुकसान पर. फ़खर जमान और इसरारुल्लाह दोनों कासिम अकरम के हाथों आउट हुए, जिसके बाद कामरान गुलाम और आदिल अमीन ने सूरत हाल को संभाला देने की कोशिश की. और अब तक 6 बॉलर्स को आजमाया गया, लेकिन ऑफ स्पिनर 2 विकेटें लेने में कामयाब हुए. कासिम अपने 4 ओवर्स में. ये सूरत हाल है. मजमूई तौर पर सेंट्रल पंजाब ने 351 रन बनाए अपनी पहली इनिंग्स में और 7 विकेट पर इनिंग्स ख़त्म करने का ऐलान किया. और केपी को जवाब में अभी भी 240 के खसारे का सामना है. 8 विकेटें उनकी बाकी हैं. और अब आपको लिए चलते हैं चाय के वक्फे के बाद के खेल की तरफ. Play. Yeah, I'm not sure that Bilawal Iqbal with this pace will be as effective with that reverse swing going. They will definitely surely miss this guy, Waqas Maqsood. काफ़ी देर के बाद वार किया. मिड विकेट बाउंड्री पर दूर दूर तक कोई फील्डर नहीं. 4 रन्स. स्पिनर की काफ़ी पिटाई कर रहे थे चाय के वक्फे से पहले, और अब ये वक्फे के बाद बाउंड्री लगाई. आजो भाई आजो. और उठता हुआ शॉट खेला. इस बार आसानी के साथ क्लियर किया मिड ऑन को. एक बार फिर गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई. 4 रन्स. ये देखिए 2 मुख्तलिफ अंदाज से 2 बाउंड्रीज लगाई उमर अमीन ने. The reverse sweep taking its toll and it's gone straight to the fence. This just tells you how comfortable these two are out there with the bat. And a different way of working is chopping the ball onto the stumps. Qasim Akram with his 3rd wicket. Ball too close to cut. And Kamran Ghulam just inside edged it into the stumps. Well, Ghulam has just saved you some embarrassment because he has given his wicket for that conversation. That's spun. No bounce on it as well. And again, that lack of bounce just beats all the defenses. Gone for 20, 147 for 3. Zohaib Khan is the new batsman. That's the popular name around now. शॉट मिड विकेट को आगे बुलाया गया.
और रन्स मिलेंगे। ये अच्छा स्ट्रोक सामने की जानिब, फील्डर पहुंच गए और तीसरे रन के लिए भी वापस अपनी क्रीज में जा पहुंचे। अच्छी दौड़ लगाई ज़ुहैब ने, जिन्हें डेंजर एंड पर आना था। 150 रन मुकम्मल हुए केपी के। और एक बार फिर उसी जगह पे रिजल्ट सेम तो नहीं होगा, एक रन ऐड कर लीजिए उसमें 4 रन मिल जाएंगे। बैक ऑफ द पिच डिलीवरी थी जिसे बहुत खूबसूरती से बैकफुट पे आके पंच किया है दोनों कवर्स के दरमियान, 4 रन हासिल किए। इसके बाद खालिद उस्मान हैं, रेहान आफरीदी हैं, 50 रन मुकम्मल किए। आदिल ने बड़ी जिम्मेदाराना बैटिंग की। Drives and finally runs, and this will have the legs. I think maybe worth checking by the third umpire in Ehsan Raza. They've run across for 3. That's that looks to be an easy decision for Ehsan Raza. Looks the boundary. Yeah. So the umpires have gotten together and they have decided that that's it as far as day 2 is concerned. It stumps 180 for 3 Khyber Pakhtunkhwa by the end of the day's play. तो कहानी यहाँ तक पहुँची है दूसरे दिन खेल के अख्ताम तक। केपी ने अपनी पहली इनिंग्स में 180 रन बनाए हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। फ़खर और इसरारुल्लाह सेट होने के बाद आउट हुए और कामरान गुलाम ने भी यही किया। 3 विकेटें हासिल की कासिम ने। आदिल ने 50 रन की बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली है। ज़ुहैब उनके साथ हैं 23 पर। और पहली विकेट के लिए फ़खर और इसरार ने 79 रन का इजाफा किया। कामरान गुलाम और आदिल अमीन के दरमियान भी 61 रन की पार्टनरशिप देखने में। यहाँ तक बॉलिंग का ताल्लुक है, 3 खिलाड़ियों को ऑफ स्पिनर आसिम अकरम ने आउट किया। मकसूद, हसन अली, बिलावल इकबाल कोई विकेट हासिल नहीं कर सके। 6 बॉलर्स को आजमाया गया था। सेंट्रल पंजाब ने 351 रन बनाए, 7 खिलाड़ी आउट हुए, उनने अपनी इनिंग्स ख़त्म की और नसीम ने शानदार सेंचुरी बनाई। जवाब में केपी ने 180 रन बनाए हैं, 3 खिलाड़ी उनके आउट हैं। 171 रन के डेफिसिट का अभी भी उनको सामना है। उम्मीद है आप इन हाईलाइट से महसूस हुए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।